Hello everyone. I, Mansi Kapre, welcome you all to our today's legal podcast of the topic Legal Aid at District Level. We, the Legal Aid Department of D.S. Sri Navalmal Firodia Law College, are excited to introduce you all to a remarkable figure in Pune's legal landscape, Mrs. Sonal Patil ma'am, who currently serves as the Secretary of District Legal Services Authority, Pune. She is a highly accomplished legal professional with 15 years of experience. She has served as the civil judge and judicial magistrate in various districts in Maharashtra, including Aurangabad, Kolhapur, and Ahmednagar. She has also worked as Deputy Registrar in the Bombay High Court and has also been assigned in the Supreme Court of India as an OSD. Sonal Patil ma'am's expertise extends to legal services, human rights, cyber law, and mediation. She is recognized for her dedication to justice and legal administration. Additionally, ma'am is also instrumental in promoting inclusivity, notably by integrating 30 transgender individuals in Pune's Lok Adalat panels. Her leadership in this groundbreaking move has further solidified her commitment to social justice. Sonal Patil ma'am is a strong advocate for the underprivileged, ensuring that justice is not only delivered efficiently but with empathy. I welcome you, ma'am. Ma'am, can you please tell us more about legal aid at district level? To start with, can you please tell what legal aid exactly means and why and by whom was this concept introduced? Article 39A of the Constitution of India provides free legal aid services, and the main object behind this Article 39A is to provide the speedy justice and equal opportunity of justice to all the persons, marginalized people, poor people, and who are not inclined to give the proper money and all the facilities to their advocates and all the things. So the motive behind is that the poor person cannot be remain outside of the justice, and he should be equal opportunity, and he can take equal opportunity to represent his matter at the court and get the justice. तो एक्चुअली जो है वो जस्टिस पी.एन. भगवती सर ने 1971 में फ्री लीगल एड कंसेप्ट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया था, और उन्होंने ही ये इंट्रोड्यूस करा हुआ था. सो फ्री लीगल एड में हम जैसे देखते हैं कि एक एग्जांपल से अगर मैं समझाना चाहूँ तो एक केस हुआ था, नॉट इन दिस कंट्री बट वो अदर कंट्रीज़ का है. तो उसमें क्या हुआ था कि एक प्रिजनर था जेल में, तो उसकी केस कोर्ट में लगी. उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी वकील सामने नहीं आया क्योंकि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे. तो जब उसकी केस चली तो उसकी केस में जो भी हुआ वो कोई उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं था. तो कोर्ट ने क्या किया कि उसको ही सामने खड़ा किया, और तब फ्री लीगल एड नहीं थी. फ्री लीगल एड की तरफ से पैनल लॉयर अपॉइंटमेंट करने की कोई प्रोविजन नहीं थी. ये कंसेप्ट का जन्म भी नहीं हुआ था तब. तो क्या हुआ कि जो जज साहब थे, जूरी थी, उन्होंने उस एक्यूज को ही पूछ लिया कि प्रोसिक्यूटर ने ये सारी केस आपके सामने रखी हुई है, ये गुनाह आपने किया है, तो आप बताओ कि आपको क्या कहना है इसमें. तो उसमें ये हुआ कि उसको कुछ लॉ नहीं पता, उसको कुछ भी नहीं, ही इज़ अ कॉमन मैन, और थेफ्ट का केस था. तो उसने क्या किया कि कुछ बता नहीं पाया, वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाया खुद को. तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं बोल सकता. तो इसको रिकॉर्ड करते हुए प्रोसिक्यूशन स्टोरी को सच माना गया और उस बेसिस पे उसको कन्विक्शन दिया गया. जब ये सब हुआ, वो केस अपील करते करते वो लास्ट मोमेंट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई. जब ये सब हुआ तो उसको पता चला कि अब मेरी केस में कुछ नहीं होने वाला है और मुझे कन्विक्शन ही हुआ है, तो अब मुझे ये सज़ा काटनी ही पड़ेगी. और वो कितनी साल से अंदर था. तो फिर क्या हुआ कि उसने जो अदर प्रिजनर्स थे उसके साथ, तो उनके साथ अपनी स्टोरी जो है शेयर करी. वो करने के बाद वो प्रिजनर जो दूसरा उसका फ्रेंड बन चुका था, उसने उसको कहा कि तू ऐसा एक एप्लीकेशन करके सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है कि तेरे साथ क्या हुआ है, कि तुझे कुछ पता नहीं है और तुमने ये गुनाह किया भी नहीं है, तुम उस दिन उस स्पॉट पे थे ही नहीं, तो उसका कुछ सवाल ही नहीं बनता है.
तो ये सब करके उसने लिख के वो सब सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। जब वो सब हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर के तहत पता चला कि ये जो भी केस है इसमें ऐसा कुछ हुआ है। तो उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी, जो नीचे स्तर के जो कोर्ट्स है उसी में वो उसको रिप्रेजेंट करने की लॉयर के तरफ से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। कोई पुअर है, वीकर सेक्शन का आदमी है, उसके लिए हम उसको इक्वल जस्टिस की थ्योरी डिनाई नहीं कर सकते। इक्वल जस्टिस और इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको अवेलेबल करके देना, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो फिर वो उनके ध्यान में आने के बाद फिर एक अच्छा सा लॉयर रिप्रेजेंट करके फिर से वो ट्रायल चलाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट से मैटर भेजा गया। और तब भी उसके पास पैसे नहीं थे, उसके घर में कोई आदमी नहीं था जो ये सब पैसे वगैरह इकट्ठा करके उसके लिए रिप्रेजेंट केस करने के लिए लगा सके। तो उस केस में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पकड़ते हुए उसको एक लॉयर फ्री सर्विसेज, मतलब उसका जो खर्चा है लॉयर का वो गवर्नमेंट दे देगी, स्टेट दे देगी, बट वो लॉयर उसको रिप्रेजेंट करेगा। और जब ये केस इस तरीके से नीचे चली तब उसका फैसला ही बदल गया, जो पहले कन्विक्शन बन चुका था वो एक्विटल में बदल गया। सो दिस वे लोगों के ध्यान में आ गया कि जस्टिस जो इक्वल अपॉर्चुनिटी के तहत है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो डिसेबल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे और कोई मार्जिनलाइज ग्रुप का इंसान हो, लेडी हो, सीनियर सिटीजन हो, एवर इट मे बी। आर्टिकल 14 में जो कहा गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द इक्वल्स, तो इसमें इसके तहत सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए फ्री लीगल एड की थीम फिर वहाँ से आई, और इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। हेंस आर्टिकल 39A प्रोवाइड्स that the state should provide the equal opportunity and equal representation to all the concerns, and hence the free legal aid scheme is developed. तो इसमें important क्या है? Free. It's free means आपको कुछ भी पैसे नहीं देने हैं, not a single rupee. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवोकेट का खर्चा स्टेट उठा रही है, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन का, उसके एप्लीकेशन का, उसकी फाइलिंग का वो खर्चा फिर कौन देगा? तो ऐसी बात नहीं है। फ्री में क्या क्या आपको फ्री मिल रहा है? फ्री में आपको एक एक्सपर्ट लॉयर के थ्रू एडवाइस फ्री में मिल रही है, आपकी केस कौन से सेक्शन के तहत बनती है, नहीं बनती है, कौन से कोर्ट में जाएगी, या कोई मतलब लीगल राइट आपका बन ही नहीं रहा है, तो इसके लिए जो भी एडवाइस है, लीगल एडवाइस, तो वो भी आपको फ्री में मिलेगी। सेकंड, फ्री में क्या मिलेगा कि अगर आपका केस बनता है किसी भी सेक्शन के अंडर, लीगल सेक्शन के अंडर, किसी भी कोर्ट में, तो वो केस मतलब एक एप्लीकेशन और केस दाखिल करने के वहाँ से लेके एंड तक, केस का रिजल्ट आने तक जो भी है वो डॉक्यूमेंटेशन का और ईच एंड एवरीथिंग, वो जो खर्चा है वो सारा गवर्नमेंट उठाती है, मतलब स्टेट प्रोवाइड करती है। लॉयर का जो आर्गुमेंट का खर्चा है या वो जो अपना स्किल यूज कर रहा है, उसमें जो एक लॉयर की फीस रहती है, तो वो फीस भी ऑनरेरियम के तहत में पैनल एडवोकेट को स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फ्री लीगल मीन्स क्या है कि आपको कौन सी सर्विसेज मिलेंगी फ्री में। अब कोई आ गया कि एक अंधा आदमी है, वो आया हमारे यहाँ पे लीगल एड डिपार्टमेंट में और वो कहने लगा कि मेरी आंखें नहीं है बट आंखों में कमी है, खराबी है, अगर मैं चश्मा किसी टाइप का यूज करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ, तो मुझे वो चश्मा प्रोवाइड किया जाए। तो क्या वो आएगा? फ्री क्या गवर्नमेंट करेगी? मतलब गवर्नमेंट करेगी या नहीं करेगी, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अंडर फ्री लीगल एड में वो आएगा नहीं। मतलब गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स रहते हैं, अंधों के लिए होगी तो उसमें वो स्कीम के अंडर उसको मिल सकता है, बट व्हाट इज गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अंडर फ्री लीगल एड, उसमें वो नहीं आएगा। या किसी और का, किसी को घर नहीं है रहने के लिए, तो वो भी है, वो आवास योजना, निवास योजना जो भी गवर्नमेंट की रहेगी उसके अंडर मिल सकता है। बट फ्री लीगल एड के अंडर क्या मिलेगा आपको? ओनली फ्री लीगल सर्विसेज। एड का मतलब मदद, हेल्प। तो जो भी लीगल टाइप की एडवाइस जैसे लेनी है, केस कोर्ट में करनी है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी फ्री लीगल एड में। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्री लीगल एड।
मैम अब एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है अगर किसी इंसान को लीगल एड सर्विस अवेल करनी है, तो एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या होगी? प्रोसीजर ये है कि आपका केस किसी भी कोर्ट में, अब एक मैं फॉर एग्जांपल कॉमन मैन हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक है, एज अ लेडी एग्जांपल के तौर पे मैं ये कहूँगी कि मुझे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है घर पे, अब मुझे नहीं पता कुछ भी, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए? तो उसके लिए क्या है कि नीचे के स्तर से लेके ऊपर के स्तर तक हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स रैंक वाइज बन चुके हैं। तो उसमें सबसे नीचे आएगा तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी, ठीक है, जो तालुका लेवल पे ग्राम पंचायत और ये जो है वो सारा एरिया तालुका के अंडर कवर हो जाएगा। उसके बाद आएगा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो डिस्ट्रिक्ट में काम करेगी। उसके बाद आएगा हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, जो हाई कोर्ट के स्तर पे काम करेगी। और उसके बाद आएगी लास्ट अथॉरिटी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। तो कोई भी आदमी है, अगर उसका कोई भी लीगल राइट के तहत केस बनता है, तो वो 4 ही कोर्ट में जा सकता है, मतलब स्तर के कोर्ट में जा सकता है। वो है तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो जिस स्तर के कोर्ट में केस बनेगा, उससे जो पैरेलल कमिटी काम कर रही है, कमिटी या अथॉरिटी, तो उसके अंडर आपका केस चला जाएगा। तो उसके लिए एक अच्छा सा सिस्टम बना है 15100। ये एक नालसा पोर्टल ने अपना ऑनलाइन नंबर टोल फ्री नंबर शुरू कर दिया है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो हेड कमिटी है, अथॉरिटी है, जो ये सारे जो स्तर के कमिटीज और अथॉरिटीज है उनके ऊपर सुपीरियर अथॉरिटी के तहत काम करती है। तो उन्होंने टोल फ्री नंबर बनाया हुआ है कि जैसे किसी भी विलेज का रिमोटेस्ट पर्सन है, कोई भी है ऑल ओवर इंडिया में, तो वो टोल फ्री नंबर के अंदर कांटेक्ट कर सकता है। तो उसकी केस को ओपिनियन दिया जाएगा और उसकी केस जिस भी कोर्ट के अंदर बनेगी या जिस तालुका डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंदर आएगी, तो उनको वो केस दी जाएगी, वहाँ पे भेजी जाएगी, उनको वो एप्लीकेशन भेजा जाएगा। फिर वो वहाँ पे कंसल्ट करने के लिए वो एप्लीकेंट को बुलाएगा और फिर वहाँ उनको जो एडवाइस दी जानी चाहिए वो दी जाएगी। और अगर केस बनता है तो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएगी। दिस इज द वन थिंग। सेकेंड थिंग क्या है कि अगर मैं किसी विलेज में रह रही हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए कि कंसर्न जो पास वाला तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी है, या फिर अगर मैं डिस्ट्रिक्ट में रह रही हूँ तो डिस्ट्रिक्ट पास का जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है वहाँ पे जाना चाहिए। अगर मैं हाई कोर्ट के पास चली जाती हूँ या फिर सुप्रीम कोर्ट में, कहीं पे भी मैं जो चेन है वहाँ पे से किसी भी अथॉरिटी के पास अगर मैं जाके एडवाइस मांगती हूँ, तो वो हमें प्रॉपर एडवाइस करके जहाँ पे भी हमारा केस बनेगा वहाँ हमें एडवाइस करके जाने के लिए बोलेंगे और फिर वहाँ से हमें सारे सर्विसेज जो है वो फ्री मिलेगी। एक नालसा का मैंने बताया, दूसरा जो है वो मैंने बताया कि डायरेक्टली आप किसी भी अथॉरिटी या कमेटी के पास चले जाओ। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है, आप किसी भी कोर्ट में भी जा सकते हो। मतलब कि ऐसा हो गया कि आपका फ्रेंड है, मैंने उसके साथ, जैसे मेरा एग्जाम्पल लिया था, मेरी कोई फ्रेंड है, मैंने उसके साथ डिस्कस किया कि मेरा ऐसे ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है मेरे साथ, तो उसको लगा कि जो नॉलेज उसके पास है, तो उसको लगा कि इसकी केस बनती है डोमेस्टिक वायलेंस की, तो उसने अपने एडवोकेट के थ्रू किसी कोर्ट में मेरी केस लगा दी। अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं करती हूँ, तो मैंने बोला कि अब मैं कैसे खर्चा चलाऊंगी, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो इन केस कोर्ट में केस दाखिल भी हो चुकी है, तब आप उस कोर्ट को भी बोल सकते हो कि मेरे पास आगे ये केस चलाने के लिए या मुझे ऐसी ऐसी केस करनी है बट मेरे पास पैसे ही नहीं है। किसी कोर्ट में खड़े रह के आप जज साहब को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे लीगल एड की हेल्प चाहिए, तो वो जो जज है वो उस कमिटी या अथॉरिटी के पास केस रेफर करेंगे और वहाँ से आपको फ्री लीगल एड मिल जाएगी। तो आप किसी जज को भी बोल सकते हो। तो दीज आर ऑल द वेज कि जहाँ से आपको फ्री लीगल सर्विसेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, पहुँच सकते हो और वहाँ से सर्विसेज ले सकते हो। मैम अब ऐसे आपने बताया, सो इस प्रोसेस के द्वारा बहुत से लोग आपको अप्रोच करते रहेंगे। सो डीएलएसए पुणे कैसे रिकग्नाइज करता है उन इंडिविजुअल्स को जिनको सच में ज़रूरत है लीगल एड की? हाँ, तो इसमें ऐसा है कि एक वही एग्जांपल अगर हम आगे लेके चले, मेरा एग्जांपल, तो जो लेडीज़ की कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए कोई इनकम क्राइटेरिया या कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है।
अब इसको कौन सा सेक्शन डील करता है, तो सेक्शन 12 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। तो उसके तहत ये बताया गया है कि कोई भी लेडी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जज हो या प्रेसिडेंट हो या कोई और भी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, बट अगर उसको फ्री लीगल सर्विसेज चाहिए तो उसको दी जानी चाहिए। मतलब मैं इन बड़े लोगों के नाम ले रही हूँ, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि किसी छोटे स्तर का एक पैसा भी ना होने वाला इंसान से लेके इतने बड़े लेवल तक की जो लेडीज है, कमाती है या नहीं कमाती है, ये क्राइटेरिया उसमें नहीं है। जो भी लेडी है उसको फ्री लीगल सर्विसेज तालुका से लेके सुप्रीम कोर्ट के लेवल की कोई भी केस फाइल करने के लिए मिलेगी। सेकंड क्या है, कैटेगरी में जो सेकंड आता है वो है कि पुअर पीपल। उसमें अब जो भी स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, तो पर हर एक स्टेट ने अपना एक लिमिट डिसाइड करके रखा हुआ है इनकम क्राइटेरिया पुअर कहने के लिए कितना होना चाहिए। तो महाराष्ट्र स्टेट ने उसका लिमिट रखा है 3 लाख रुपीज। तो 3 लाख रुपीज के से कम जिसका भी इनकम होगा पर ईयर, तो उसको फ्री लीगल सर्विसेज मिलेगी। लेकिन कोई आईटी में काम कर रहा है और उसका जो मंथली सैलरी 3 लाख रुपीज है और वो हमारे पास आए, तो हम उसको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे। बट कोई भी ऐसा इंसान है जिसके 3 लाख से कम है, तो तालुका से लेके हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी तक उसको सर्विसेज मिलेगी। और इनकेस अगर उसकी केस सुप्रीम कोर्ट में जानी है, तो क्राइटेरिया इनकम का जो है वो 3 लाख से बढ़ के 5 लाख है। तो आपका इनकम जो है 5 लाख से कम होना चाहिए, तो उसकी केस सुप्रीम कोर्ट में फ्री लीगल एड के तहत चलाई जा सकती है। सो दिस वन इज ऑल्सो कैटेगरी। देन डिसेबल्ड पर्सन्स, 80% डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो ये डिसेबल्ड पर्सन्स है, उनको भी हम फ्री सर्विसेज देते हैं। कई स्टेट्स है उन्होंने उसमें सीनियर सिटीजन को भी अलाउ कर लिया है, बट अभी महाराष्ट्र में सीनियर सिटीजन के लिए फ्री लीगल सर्विसेज नहीं है। और कई स्टेट्स ने ट्रांसजेंडर्स को भी उस कैटेगरी में ले लिया है, बट अभी हमने उसमें ट्रांसजेंडर्स को नहीं लिया हुआ है। तो दीज आर ऑल द कैटेगरीज हैं कि जिसके अंडर सेक्शन 12 जो कहता है उस कैटेगरी में कोई इंसान आता है तो उसको हमें फ्री लीगल एड देनी होती है और देनी पड़ती है। मैम, क्या आप कुछ सर्विसेज बता सकती है जो फ्री लीगल एड के अंदर दी जाती है? सर्विसेज जैसे कि मैंने अभी बताया कि एडवाइस आ गया उसमें, मतलब कोई है इंसान, वो आ गया हमारे पास, प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके आ गया कि ये प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा है और मेरा केस बनता है, तो मुझे आप फ्री सर्विसेज दे दीजिए। अब हमारा जो लॉयर फ्री सर्विसेज देने के लिए पैनल पे है, उसने उसकी केस पढ़ी और उसको लगा कि इसका हिस्सा आता ही नहीं है, मतलब जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो उसकी कमाई की है, तो ये जो इंसान मेरे सामने बैठा है उसका उसमें कोई राइट बनता ही नहीं है। अब उसका केस नहीं बनता, इसके लिए हम उसको सर्विसेज डिनाई नहीं कर सकते, या फिर उससे फिर आपने ये ऐसे कैसे केस लेके आ गए हमारे पास कि आपकी केस ही नहीं बन रही है तो हम आपसे पैसे लेंगे, ऐसा नहीं है। आपकी केस बने या ना बने, जो भी एडवाइस उसको देना है तो वो फ्री में ही दिया जाएगा, उसके कोई पैसे नहीं बनेंगे। देन सेकंड है कि अगर आपका केस बनता है तो हम लीगल रिप्रेजेंटेशन जो है, आर्ग्यूमेंट्स है, केस चलानी है कोर्ट में, विटनेसेस लेने हैं, एविडेंस लेना है, एप्लीकेशंस फाइल करनी है, तो वो सारा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट देगी। डॉक्यूमेंटेशन का जो भी खर्चा है वो सारा खर्चा भी स्टेट गवर्नमेंट देगी, तो आपको कोई पैसे देने ही नहीं है। तो दीज काइंड ऑफ सर्विसेज आर गोइंग टू बी प्रोवाइडेड इन द फ्री लीगल एड। यस मैम, बहुत बार ऐसा होता है कि किस एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को इन सर्विसेज के बारे में पता नहीं होता, या फिर सर्विसेज के बारे में पता होता है पर उन्हें एक्सेस कैसे करें ये पता नहीं होता। क्या आप हमें कुछ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स बताएंगी जो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं? अभी तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, अवेयरनेस कैंप्स लेने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्तर पर हमें बोलती है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो हमने बोला कि टॉप मोस्ट अथॉरिटी है लीगल एड में काम करने वाली, तो उन्होंने भी सारे तालुका लीगल सर्विसेज कमिटीज़ को और डीएलएसएस को या अदर अथॉरिटीज़ को सबको बोला है कि हमें महीने में कितने लीगल एड अवेयरनेस कैंप लेने हैं। नालसा ने जो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन दी हुई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो भी रखा हुआ है,
कांटेक्ट कैसे किया जाना चाहिए। तो ये सारी जो है सर्विसेज, तो उसके लिए उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक डेवलप किया हुआ है जो हर एक कमिटी और अथॉरिटी को प्रोवाइड किया जाता है। तो मंथली हमें 15 to 20 प्रोग्राम्स लेने पड़ते हैं इसके तहत, और उसमें हम गांव-गांव जाके, रिमोटेस्ट पर्सन के यहाँ पे जाके, विलेजेस में जाके उनको ये सारे सर्विसेज जो है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उनके लीगल राइट्स के बारे में उनको अवेयर करना, ये सारी चीज़ें हम उसमें करते हैं। Ma'am, we are now aware like implementing free legal aid at district level is definitely not a piece of cake. इस प्रोसेस में आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे. So can you please tell us कि क्या मेजर चैलेंजेस आप फेस करते हो एंड DLSA पुणे उन्हें कैसे एड्रेस करता है? वैसे तो जो भी काम DLSA की तरफ से किया जाता है, हर एक चीज़ में चैलेंजेस तो रहती है। ऐसा कोई काम नहीं है, जब हम पर्सनली भी कोई काम करें या फिर अथॉरिटी का काम करें तो चैलेंजेस तो रहते ही हैं। तो जब लीगल अवेयरनेस कैंप्स हम लेने के लिए जाते हैं तो वो कैंप जो डाउन टू डाउन पीपल है, मार्जिनलाइज पीपल है, उनके लिए रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब कैंप लेने जाते हैं तो हमें लोगों को अवेयर करने के लिए पहले लोग तो होने चाहिए वहाँ पे। हम तो टीम बना के गए हैं विलेजेस में, बट जो नीडी है, जो पुअर है, जिसको इन्फॉर्मेशन देनी है वो ही वहाँ पे नहीं है, तो हम अवेयर करेंगे किसको? तो पीपल जो है उनको ऑलरेडी कुछ भी नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में, या जैसे कोई फ्रॉड लोग होते हैं उनकी वजह से ऑलरेडी उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। तो जब कोई अथॉरिटी जाती है, कुछ प्रोग्राम भी करना चाहती है, तो लोग आते नहीं उस प्रोग्राम के लिए, उसको समझना नहीं चाहते या फिर बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट रहते हैं उन चीज़ों के लिए। तो हमें NGOs की हेल्प, हम रिड्रेस उसको इस लेवल पे करते हैं कि हम NGOs की हेल्प लेते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ रहती है, पुलिस अधिकारी हो या फिर ग्राम पंचायत के अधिकारी हो, तो उन सबको हम अपने काम में शामिल कर लेते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ऐसे लोगों को टैप करो जो पुअर नीडी है, और फिर उनका एक सेशन हम लेते हैं और उनको हम बताते हैं, अवेयर करते हैं कि क्या हम किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो अपने लीगल राइट्स के लिए कैसे अवेयर हो सकते हैं। मैम, क्या आप हमें बता सकती है, गाइड कर सकती है कि हम एज लॉ स्टूडेंट्स लीगल एड अवेयरनेस लीगल एड अवेयरनेस करने के लिए क्या हेल्प कर सकते हैं? बहुत कुछ हेल्प कर सकते हो, बिकॉज यू पीपल आर ओनली द एम्बेसडर्स ऑफ द मिशंस ऑफ जस्टिस। क्योंकि क्या है कि एक DLSA अथॉरिटी होती है, वहाँ पे कितने लोग काम करते हैं, उनके पास ऑलरेडी मैन पावर कम है, कोई अथॉरिटी हो या कमिटी हो, तो उसका एक लिमिटेड ये रहता है कि 10 लोग काम करेंगे, 20 लोग, क्योंकि वो भी सरकारी ऑफिस है, तो वहाँ पे मैन पावर की कमियां रहती हैं। और अगर हम चेक करें तो पुणे जैसे डिस्ट्रिक्ट में ही कितने सारे विलेजेस हैं। अभी हमने 2-4 दिन पहले ही न्याय संहिता प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसमें हमने ये डिसाइड किया कि 365 डेज ऑफ द ईयर जो है उसमें हम 365 विलेजेस को विजिट करेंगे और उतने विलेजेस के लोगों को अवेयर करेंगे। बट इसके लिए आप सोचो कि कितने मैन पावर की ज़रूरत है, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, एक विलेज और पुणे डिस्ट्रिक्ट से लेके ट्रैफिक में वहाँ पे जाना, एक दिन पूरा, कोई डिस्ट्रिक्ट और कोई विलेज ऐसा है कि एक दिन पूरा वहाँ पे जाने के लिए लगता है, फिर आप प्रोग्राम लोगे और फिर आओगे। तो अगर एक DLSA सेक्रेटरी या चेयरमैन ये काम करने लगे तो वो तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम ही ले सकता है फिर 1-2 दिन में, दूसरा तो कुछ काम कर ही नहीं सकता। और सभी के लिए टाइम पीरियड जो दिया गया है वो वेरी रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब 30 डेज है सबको 1 महीने में काम करने के लिए, तो सभी के पास 30 डेज ही है। तो 30 डेज में सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं करना है, जो ज़रूरतमंद लोग आए हुए हैं उनको लीगल एड प्रोवाइड करनी है और सारी मदद भी जो प्रोवाइड करते हैं वो भी करनी है। तो उसके लिए हमें कॉलेज स्टूडेंट्स की हेल्प हो सकती है, क्योंकि हम वहाँ न्याय संहिता प्रोजेक्ट में भी हमने यही किया है कि हम उनका ट्रेनिंग ले रहे हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स उनको बना के कॉलेज के स्टूडेंट्स को उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और उनको क्या चीज़ें समझानी है, कौन से लीगल राइट्स उनको समझाने हैं और एंड टू एंड हेल्प कैसे उनको प्रोवाइड करनी है वो उनको समझाया जाएगा। फिर वो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वो 10-10 स्टूडेंट का ग्रुप भी बना के अगर एक विलेज में चले जाते हैं तो एक दिन में कितने सारे विलेजेस में अवेयरनेस हो सकता है। सो इन दिस वे जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो लीगल एड में हेल्प कर सकते हैं, और देयर आर सो मेनी अदर मोड्स आल्सो दैट वे आल्सो दे कैन आल्सो हेल्प टू अस।
थैंक यू सो मच मैम। मतलब आई एम श्योर कि ये पॉडकास्ट जो भी लोग देखेंगे, हमारे लॉ स्टूडेंट्स, लॉ कलीग्स, सब जरूर हेल्प करेंगे लीगल एड अवेयरनेस करने के लिए। थैंक यू। As we wrap up this insightful discussion with Sal Patil ma'am, thank you very much ma'am for sharing your experiences and shedding light on the critical work done at the district level. Yes, ma'am. Yes, it was a privilege to know about these efforts from someone working on the front line of this important mission. मैम, हमने एक सर्वे कंडक्ट किया था कुछ दिन पहले, जिसके थ्रू हमें पता चला कि कॉमन मासेस में बहुत सारे मिसकंसेप्शन एंड डाउट्स है लीगल एड से रिलेटेड. So we request you to please answer some frequently asked questions. Yes. So, do we need to have documentation to prove our eligibility for legal aid? वो पहले था, बट अभी जो मॉडिफाइड स्कीम है उसके अंडर नहीं. Okay. सेल्फ एफिडेविट, सेल्फ अटैच्ड एफिडेविट इज सफिशिएंट. Okay. So legal aid is only for individuals या फिर कोई organizations भी अप्लाई कर सकती है? सभी के लिए है. जो इनकम क्राइटेरिया है या सेक्शन 12 में जो कैटेगरी आती है उसके अंडर जो भी आएंगे सभी के लिए. लीगल एड सभी लेवल के कोर्ट पे हमें अवेलेबल हो सकती है? सारी लेवल के कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से लेके तालुका कोर्ट तक सारी लेवल पे. किस टाइप की केसेस के लिए हमें लीगल एड प्रोवाइड हो सकती है? देयर इज सच काइंड ऑफ नो प्रोविजन इज एग्जिस्टिंग. पहले था पास में, डिफॉर्मेशन वगैरह कुछ कैटेगरीज थी उसमें नहीं था, बट आज की डे में सारी केसेस के लिए देयर इज नो बार फॉर एनीथिंग. जब हम लोग लीगल एड के लिए अप्लाई करते हैं, जो लोग हमें कंसल्ट करते हैं वो कौन होते हैं? लीगल प्रोफेशनल, गवर्नमेंट ऑफिशियल या कौन होते हैं? वो लॉयर होते हैं. लॉयर्स. और लीगल एड सच में फ्री होता है या फिर कुछ हिडन कॉस्ट रहता है? हिडन भी नहीं और कुछ और किसी लेवल के भी नहीं. आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है अगर आपको लीगल एड की तरफ से वकील मिला हुआ है तो. और अगर कोई ऐसे डिमांड करता है तो आपको कंप्लेंट भी दाखिल करनी है. मैम, एज यू सेड कि ये फ्री होता है, सो लाइक क्वालिटी सर्विस और जेन्युइन सर्विस मिल जाती है लोगों को? दैट इज अ बिग क्वेश्चन, बट एक एक्चुअल में सिस्टम जो रन करता है तो उसमें ये होता है कि वी आर गोइंग टू, मतलब इट इज बर्डन ऑन अस कि हम क्वालिटी सर्विस ही प्रोवाइड करें. तो पहले तो पता नहीं है, बट आज की डेट में हम जो पैनल लॉयर चूज करते हैं तभी उसमें सारे क्राइटेरियाज देख के और उसकी क्वालिफिकेशन एंड ऑल द थिंग्स देख के हम उसको लेते हैं ताकि हम क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर सकें. मैम, ये जो प्रोसेस है लीगल एड लॉयर असाइन होने का, सो इज इट अ स्लो प्रोसेस या हो जाता है जल्दी? नहीं, अभी तो हम आज की डेट में 24 आवर्स में जैसे आता है उसको तभी दे देते हैं, बट अगर देर से देर मतलब 24 आवर्स. ओके. अगर कोई इंसान डिससेटिस्फाई होगा, मतलब उसे अच्छी सर्विस नहीं मिल रही होगी जो लॉयर असाइन किया है उससे, सो कैन ही अप्लाई फॉर चेंज? यस, मतलब वो कितने भी टाइम कर सकता है. मतलब 20 लॉयर दिए चेंज करते 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 और तब भी वो सेटिस्फाई नहीं है और फिर से एप्लीकेशन कर देता है तो हम 21st लॉयर को अपॉइंट कर ही देते हैं. सो व्हेन पीपल अप्रोच DLSA फॉर हेल्प, सो उनके जो मैटर्स है वो कॉन्फिडेंशियल रहते हैं? आर दे लाइक सिक्योर? जो मैटर्स पोस्को वगैरह ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है तो वो मेंटेन रहती है. नहीं तो जो एक अटॉर्नी एंड क्लाइंट का जो होता है कि उनमें कॉन्फिडेंशियलिटी रहनी चाहिए तो उस तरीके से मेंटेन की जाती है. और जहाँ पे नहीं ऐसा कुछ है तो इट इज ओपन. ओके. सो इफ अ पर्सन अप्लाइज फॉर लीगल एड एंड ही इज नॉट फ्रॉम दिस डिस्ट्रिक्ट, सो किसी और डिस्ट्रिक्ट का इंसान भी लीगल एड के लिए प्रोवाइड कर सकता है? कर सकते हैं, मतलब कि अगर जुरिस्डिक्शन के हिसाब से देखा जाएगा, अगर पुणे का केस है और पुणे का ही क्लाइंट है वो हमारे पास आया और यहाँ उसकी केस बन रही है तो हम यहाँ का लॉयर देंगे. नहीं तो अगर उसकी केस बीड में बन रही है तो इस DLSA की तरफ से हम उसको वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे. ओके. मैम, एंड अगर कोई इंडियन सिटीजन नहीं होगा, सो क्या वो अप्लाई कर सकता है लीगल एड के लिए? बिल्कुल कर सकता है, ऐसी कोई नेशनलिटी का बार नहीं है. सो लीगल एड जो है वो इमरजेंसी सिचुएशंस में हेल्प हो जाता है क्या, जैसे कि बेल एप्लीकेशंस? बिल्कुल हो जाता है. जैसे कि हमने जितने भी पुणे के सारे पुलिस स्टेशन हैं उन सारे पुलिस स्टेशन में हमारे जो पैनल लॉयर्स हैं उनके नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और नेम दे चुके हैं हम. और किसी भी एक्यूज को वो जब फर्स्ट टाइम पकड़ लेते हैं तो तभी उसको वो बता देते हैं कि अगर तुझे फ्री सर्विसेज चाहिए देन वी कैन प्रोवाइड टू यू. और कुछ लोग चाहते भी हैं कि उनके पास कोई लॉयर नहीं है तो हमारे पास वो कांटेक्ट करते हैं और हम प्रोवाइड कर देते हैं.
Ma'am, are legal aid lawyers the same as public prosecutors? नो बट प्रीवियसली दैट इज नॉट, बट अभी 1 साल पहले लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम आई है, उसके तहत जो अंडर ट्रायल्स है, कन्विक्ट्स है, उनके लिए जस्ट लाइक पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमने डिफेंस काउंसिल को अपॉइंट किया हुआ है और वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए की तरह डिफेंस के लिए उनको मदद करते हैं। मैम, कोई अपने लीगल एड केस का ट्रैक कैसे रख सकता है? वो अपने क्लाइंट जो होते हैं वो अपने लॉयर को पूछ सकते हैं। अगर लॉयर से कोई बात नहीं हो पा रही है, कोई अड़चन आ रही है, तो वो हमारे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास भी एप्लीकेशन देके पूछ सकते हैं। एंड मैम, द लास्ट क्वेश्चन कि अगर लीगल एड सर्विस को मिसयूज किया, सो इज देयर एनी पेनल्टी फॉर इट? यस, बिल्कुल है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के अंदर प्रोविजन है, उससे हम वो सारी जो सर्विसेज लिए उसका खर्चा भी ले सकते हैं, उसको पेनाल्टी भी लगा सकते हैं और लीगल एड सर्विसेज हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ पेनाल्टीज एंड पनिशमेंट्स। Yes. Thank you so much, ma'am, for addressing the concerns of the general public. आपसे बात प्लेजर। yes. आपसे बात करने के बाद ये वापस हमें रिकन्फर्म हो चुका है कि लीगल एड इज नॉट जस्ट अ सर्विस बट इट्स अ लाइफ लाइन फॉर मेनी. Like it is, we need to ensure that justice is not just a privilege for a few, but it's a right for everyone. बिल्कुल है, क्योंकि मैं एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पे कि 7,000 लोग जेल के अंदर हमारे पुणे के बंद हैं और वहाँ से 400 to 500 जो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं उनको हम लीगल एड डिफेंस काउंसिल की तरफ से सर्विसेज दे रहे हैं और जो पुअर्स वगैरह जो हमारे पास आ रहे हैं उनको भी मतलब मंथली अगर डेटा आप चेक करने जाओ तो 1000 से ज़्यादा लोगों को हम फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर रहे हैं। Yes. Thank you so much, ma'am, for this session. Like it was really informative and inspiring. We wish you and DLSA Pune all the very best luck for your future initiatives in this area. Thank you. Thanks a lot. Thank you, ma'am.